Vice President Jagdeep Dhankar addressed the inaugural session of the Conference of Vice Chancellors of State, Central and Private Universities of Tamil Nadu at Raj Bhavan in Udagamandalam, Tamil Nadu. Addressing the event, the Vice President said that the national education policy is not just a government policy but a policy for the nation. Union Minister for Communications Jyotiraditya M. Scindia attended the 3rd International Quantum Communication Conclave in New Delhi. Speaking on the occasion, the minister said that Bharat's own Centre for Development of Telematics has been at the forefront of developing quantum key distribution, a groundbreaking technology for secure communication. Union Minister of State for Ayush, Health and Family Welfare Pratap Rao Jadhav inaugurated the 2nd Asian Yogasan Sport Championship at Indira Gandhi Stadium in New Delhi. Addressing the event, the minister said that it is a proud moment as athletes from across Asia have come together to showcase the power of discipline, balance and strength through Yogasan, which is India's timeless gift to the world. Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary presided over the passing out parade as chief guest of the 75th batch of 42 Indian Revenue Service Customs and Indirect Taxes officer trainees, including 25 men and 17 lady officers at National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Palasamudram in Andhra Pradesh. Addressing the occasion, the minister expressed confidence in the Indian Revenue Service officers' ability to advance the government's vision of Viksit Bharat by promoting economic progress and social equality. भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं और उपग्रह सेवाओं की दिशा में सशक्त कदम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 20 अप्रैल 2025 को रात 8:20 पर अपने स्पेस डॉकिंग अभियान स्पेडेक्स के अंतर्गत SDX-01 और SDX-02 नामक उपग्रहों के बीच दूसरी सफल डॉकिंग को पूरी तरह स्वचालित रूप से संपन्न किया। इसके अगले दिन ही इसरो ने दोनों उपग्रहों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान का भी सफल परीक्षण किया। इस प्रक्रिया में हीटर एलिमेंट को सक्रिय करना भी शामिल रहा। यह डॉकिंग पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली से संपन्न की गई, जो स्पेडेक्स अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उल्लेखनीय है कि भारत अंतरिक्ष में उपग्रह डॉकिंग तकनीक को सफलतापूर्वक हासिल करने वाला चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इसरो द्वारा विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसमें डॉकिंग मैकेनिज्म, 4 उन्नत संपर्क स्थल और डॉकिंग सेंसर्स, ऊर्जा हस्तांतरण की क्षमता, उपग्रहों के बीच संचार लिंक और एक अनोखी स्वचालित डॉकिंग रणनीति शामिल है, जो प्रत्येक अंतरिक्ष यान को दूसरे की स्थिति समझने की बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। स्पेडेक्स अभियान भारत की क्षमताओं के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मानव अंतरिक्ष उड़ानों, उपग्रह सेवाओं और अंतरिक्ष में भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। भारत में मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट और अस्वस्थकर वसा से भरपूर भोजन मोटापे को बढ़ावा देता है। बाहर के भोजन में रिफाइंड तेल का अधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शारीरिक गतिविधि की कमी और स्क्रीन टाइम में वृद्धि मोटापे को बढ़ावा दे रही है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और सक्रिय जीवन शैली सेहतमंद जीवन का आधार हैं। आइए आज से ही स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं।
Hi everyone, welcome to Srajan India 1. Today we are going to talk about 26th of April 2025 newspaper. Today is day 115. Achievement comes when you decide to live your possibilities. Today we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is Prelims 1. This is a year long course. This is aimed for 2026 prelims exam. इसमें GS1 एंड GS2 दैट इज CSET ये दोनों ही पार्ट बहुत सिस्टमैटिकली पूरे साल में आपके कंप्लीट हो जाएंगे. स्टैटिक, डायनामिक, कोर, एप्लीकेशन, हम सारे एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम को कवर करेंगे. इसमें एनसीईआरटी है, बुक्स है, पीवाईक्यू, नोट्स, क्विज, सीसेट, हेल्थ, लाइब्रेरी, रिवीजन, कम्युनिटी और वर्क भी है. सो हम फुल्ली कमिटेड हैं. जो 2026 की साइकिल है ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है. आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं फॉर अ वेरी नॉमिनल फी ऑफ ₹5555. मीनवाइल टेस्ट सीरीज का जो बैच है उसकी क्लासेस अब फुल थ्रॉटल होगी. लाइव क्लासेस में हम करंट अफेयर्स पे अब फोकस करने वाले हैं. कोर सब्जेक्ट में हमने एनसीईआरटी, कोर बेस्ड एमसीक्यू, पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी, सीएससी एंड सीडीएस कंप्लीट कर लिया है. इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. आप एनसीईआरटी पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, पीवाईक्यू पिछले 30 साल के अच्छे से सॉल्व करो, आप टेस्ट सीरीज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. दिस इज द एंटायर जो आपको सिलेबस फॉलो करना है कोर में. करंट अफेयर्स में आपको साल भर न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए. जो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस होते हैं उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए और कुछ एमसीक्यू एंड टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट सवाल देखना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी सस्टेनेबल वे ऑफ स्टडिंग और इससे सिलेक्शन हो जाता है. सैटरडे अप्रैल 26, 2025 न्यूज़पेपर एवरीडे फॉलो इसलिए करना चाहिए ताकि आप किसी भी टॉपिक से अनअवेयर नहीं हो. You must know कि what is going on in the world, what is the technology thing, what is the polity thing, what is the IR thing. So जैसे ये है 26 Rafale M fighters. लास्ट ईयर प्रीलिम्स में सवाल आया था. उसमें जनरेशन ऑफ फाइटर जेट के ऊपर एक सवाल था कि 4.5 जनरेशन है या 4th जनरेशन है. सो दिस इज 26 Rafale M फाइटर. अब M स्टैंड्स फॉर से वी कैन से मैरीटाइम, मतलब ये नेवल वर्जन ऑफ Rafale है. इंडिया फ्रांस सेंड टू कॉन्क्लूड डील. अब ये जो डील है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है. इस डील में और भी लाइक मिसाइल्स कौन सी इंक्लूडेड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन से इंक्लूडेड है, ये सब डिटेल में अभी आगे देखते हैं. देन द मीडो क्राइज आउट इन फियर एंड ग्रीफ. दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. दिस इज कश्मीर. यहाँ बात है क्रीमिया का. क्रीमिया विल स्टे विद रशिया. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है. क्रीमिया पे रशिया ने 2014 में कैप्चर कर लिया था. क्रीमिया अब रशिया का ही पार्ट रहेगा. यूएस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है. लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप है प्रेशरिंग यूक्रेन टू मेक कंसेशंस टू एंड द ऑनगोइंग वॉर व्हाइल इट रिमेन्स अंडर सीज. So if we talk about the geography, the mapping of Crimea, so this is a peninsula. So it has 3 sides water. यहाँ Sea of Azov है और नीचे Black Sea है. यहाँ एक सेवेस्टा पोल भी बहुत इंपॉर्टेंट दिस ज्योग्राफी का मैपिंग पॉइंटर है. नाउ दिस इज सी ऑफ अजोव एंड दिस इज ब्लैक सी. यहाँ एक नैरो वाटर बॉडी है जो सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करता है. इस नैरो वाटर बॉडी का नाम बताइए. देन यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो ब्लैक सी को फर्दर. इस सी का नाम बताइए. क्या ये डायरेक्ट मेडिटेरेनियन आ रहा है या फिर बीच में कोई एक दूसरा सी आ रहा है. वेयर इज सी ऑफ मारा, वेयर इज सी एजियन सी कहाँ पर है. तो ये पूरा मैपिंग है क्रीमियन पेनिनसुला का. अब वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज रशिया को अगर क्रीमियन पेनिनसुला मिलता है तो ब्लैक सी में रशियन प्रेजेंस ज़्यादा होगी, रशिया का एक्सेस बढ़ेगा और रशिया ब्लैक सी के थ्रू ही आ सकता है मेडिटेरेनियन सी में. सो दैट इज वाई ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया. और मेडिटेरेनियन का मतलब है फिर यूरोप. सो रशिया की एंट्री यूरोप में होती है वाया मेडिटेरेनियन सी. दिस इज बायसारान मीडो वॉज. सो यहाँ पर मीडो एक वर्ड लिखा हुआ है. आपको पता है मीडो क्या होता है. मीडो को हम बोल सकते हैं घास के मैदान. बहुत सारी घास है, ग्रीन ग्रास होनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो रेड हो गई थी. सो मीडो इज एन ओपन एरिया ऑफ लैंड डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, वाइल्ड फ्लावर्स. तो ये ग्रासेस, वाइल्ड फ्लावर, नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं. यहाँ पे ट्रीज और श्रब्स भी होते हैं पर बहुत कम होते हैं वो. सो ये मीडो है. मीडो में डोमिनेंट वेजिटेशन प्राइमरली ग्रासेस होती है. ये एक ओपन हैबिटेट होता है. यहाँ वाटर अवेलेबिलिटी वेल ड्रेन सॉइल से आती है बट यूजुअली कई बार ये ड्राई भी होता है. जो भी ग्रासलैंड्स हैं ये एक ट्रांजिशन जोन है.
जहाँ पर भी ग्रासलैंड्स आ रहे हैं ये एक ट्रांजिशन जोन है, जैसे हम अफ्रीका में भी देखे थे ग्रासलैंड्स, या हमने देखा था यूरोप में भी। सो यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा बारिश है ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। वाटर अवेलेबिलिटी ओके ओके है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर रिच वेराइटी मिल सकती है, बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स एट्सेट्रा। नेचुरल मीडोज हो सकते हैं जैसे अल्पाइन मीडोज, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में। कोस्टल मीडो समंदर के पास होंगे। प्रायरी, प्रायरी की लोकेशन क्या है? वेट मीडो है, डेजर्ट मीडो है। एग्रीकल्चर, अर्बन, तो ये मैनमेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो मीडो का मतलब होता है ग्रासलैंड। देन अब यहाँ पर बात है जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है और इसमें जो बात आती है टूरिज्म की। सो टूरिज्म स्टेट सब्जेक्ट है या फिर टूरिज्म सेंट्रल यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है? तो टूरिज्म जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है या यूनियन सब्जेक्ट है? और यहाँ बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर फॉर टाइम बिंग इज अ यूनियन टेरिटोरी, सो यहाँ पर किस एजेंसी, किस बॉडी का दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये प्रोविजंस होने चाहिए। सो दिस इज देयर। देन क्रीमिया है, यहाँ पर बात है चाइना वाउज टू स्टेप अप सपोर्ट फॉर इकोनॉमी। तो चाइना अपनी इकोनॉमी को जो ट्रेड वॉर के अंदर डिफिकल्ट फेज में आ रही है उसको पुश अप करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए सपोर्ट देने की बात कर रहा है चाइनीज इकोनॉमी को। आप हैं इसरो के फॉर्मर चेयरमैन कस्तूरी रंगन साहब, रिनाउंड साइंटिस्ट आप रहे हैं। इसरो का जो मॉडर्न डे शेप है, मिशंस है, डायरेक्शन है, वो सब आप उसके जनक बोले जा सकते हैं। तो आप डी कस्तूरी रंगन साहब हैं। हेवनली अबोर्ड, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 94 टू 2003 आप इसरो के चेयरमैन रहे हैं, 5th चेयरमैन, और आप इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में भी रहे हैं इसके बाद फॉर 9 ईयर्स। जैसे कुछ सैटेलाइट्स हैं भास्कर 1 एंड भास्कर 2, या फिर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है इसमें टेक्नोलॉजी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं अभी अलग से करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में आपका कंप्लीट करा दूंगा। सो दिस इज कस्तूरी रंगन जी, अ टावरिंग फिगर इन इंडिया साइंटिफिक एंड एजुकेशनल जर्नी। दिस इज पॉलिटिकल, यहाँ बात है स्टब्बल बर्निंग, बट अब ये हरियाणा पंजाब का नहीं है, ये मध्य प्रदेश का है। तो स्टब्बल बर्निंग के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इसको डिस्करेज करने की। ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग क्रॉप रेसिड्यूज को नरवाई बोलते हैं। आफ्टर हार्वेस्ट इज कॉजिंग सीवियर एनवायरमेंटल डैमेज, एयर पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी। स्टब्बल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिस्ट्रॉय होते हैं, फर्टिलिटी भी इम्पैक्ट होती है। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है स्टबल बर्निंग, जिसको लोकल भाषा में नरवाई बोलते हैं। यहाँ पर अब इसको फर्दर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है जो नरवाई करेगा, स्टबल बर्निंग करेगा, उस किसान को MSP नहीं मिलेगी, उसकी जो फसल है उसको सरकार नहीं खरीदेगी, और चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना उसके बेनिफिट्स भी नहीं दिए जाएंगे। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिस्करेज कि सच टाइप ऑफ स्टबल बर्निंग शुड नॉट बी देयर। अब जैसे ये प्रोविजंस है, आपसे पूछा जाए स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो, तो एक तरीका तो है आप ऑल्टरनेटिव उसके बताओगे, सॉल्यूशंस बताओगे कि पूसा डिकम्पोजर हो गया या फिर समथिंग लाइक दैट। दूसरा है आप यहाँ पर प्यूनिटिव एक्शंस भी ले सकते हो। प्यूनिटिव मतलब जो किसान स्टबल बर्निंग करेगा उसको गवर्नमेंट बेनिफिट, किसान बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, उसकी क्रॉप MSP में नहीं खरीदी जाएगी। तो हम ये भी एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। मेंस की क्लासेस अभी थोड़े दिनों में चालू होगी और हम बहुत अच्छी उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। DRDO मेक्स हेडवे इन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। तो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। हाइपरसोनिक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है। एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर है जो 1000 सेकेंड तक टेस्ट रन उसका हुआ था। सो दिस इज गुड। ये स्क्रैमजेट कंबस्टर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रैमजेट एंड रामजेट? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक स्क्रैमजेट इंजन होता है और एक रामजेट इंजन होता है। प्रोपल्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन किस फॉर्मेट में सप्लाई होती है? ये रफेल M है। दिस इज अ वेरी केपेबल फाइटर जेट। 63,000 करोड़ में हम 26 रफेल ले रहे हैं फ्रांस से। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। ये वेल इक्विप्ड रहेंगे, इसमें बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स एट्सेट्रा भी लगाई जाएगी। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया है, और INS विक्रांत है जो हमारा इंडिजीनस है। इंडियन एयरक्राफ्ट में स्की जंप यूज किया जाता है, अरेस्टर केबल्स यूज की जाती है, बिकॉज लैंडिंग एंड टेक ऑफ एरिया इज लेस, स्पेस का क्रंच होता है एयरक्राफ्ट पे। सो उसके लिए हम यहाँ पर स्की जंप
लाइक ऐसे एलिवेशन में जंप, और अरेस्टर ताकि सडन हॉल्ट हो जाए जब वो प्लेन लैंड हो। तो ये मॉडिफिकेशंस उसमें किए जाएंगे। फेयरवेल टू द पोप, प्रेसिडेंट मैम ने अभी होमेज दिया पोप फ्रांसिस को। फ्यूनरल है सेंट पीटर्स बेसिलिका इन वेटिकन सिटी ऑन फ्राइडे। Over a dozen annual report of SC, ST and OBC panels yet to be made public. Now, see, this is again a cause of concern. इंडिया में कल मैंने एक वीडियो और प्लेलिस्ट PDF शेयर किया है जिसमें सारी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ सारे PDF मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे कमीशंस है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC। आप बताओ ये किन सब आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर नेशनल कमीशन जो है ये एक रिपोर्ट बनाती है, और रिपोर्ट जो होती है उसमें पूरा डेटा रहता है कि क्या बेनिफिट्स एक्चुअली रियलाइज हो रहे हैं, क्या बेनिफिट्स बेटर हो सकते हैं, क्रीमी लेयर क्या होता है, कैटेगराइजेशन कैसे हो सकता है, हेल्थ एंड इंफ्रा एजुकेशन क्या है, पॉलिसी मेकिंग कैसे होना चाहिए, स्टेटस ऑफ अपलिफ्टमेंट नंबर एटसेट्रा। एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाती है पर्टिकुलर बॉडी और प्रेजेंट करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे पार्लियामेंट में चेयर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट अभी पैनल में नहीं आई है। यहाँ पे बात है इंडस वाटर ट्रीटी का। सो दिस इज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को भी हम अभी अलग से यहाँ पर देखते हैं। सो देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इससे पहले ये था, ये सारे नोट्स मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि मीडो का हैबिटेट, पॉलिनेशन, रेगुलेशन, कार्बन सिक्वेस्टरेशन, सॉइल हेल्थ होता है, एस्थेटिक्स टूरिज्म होता है, हैबिटेट, पॉलिनेशन, ये सब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये एक अग्रीमेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान का। वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था। ये इंडस रिवर सिस्टम को मैनेज करने के लिए बनाया है। ये कराची में साइन हुआ था सितंबर 1960 में। द देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान। अलोकेशन ऑफ रिवर में जो ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलज, ब्यास और रावी, इनका एक्सक्लूसिव यूज इंडिया के पास है। वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम, चेनाब, इंडिया, इनका एक्सक्लूसिव जो यूजेज था वो पाकिस्तान को दिया गया था। डोमेस्टिक यूज में, नॉन कंजम्पटिव यूज में और एग्रीकल्चरल यूज में इंडिया इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली यूज नहीं कर सकते थे। हम डोमेस्टिक, नॉन कंजम्पटिव जैसे पावर जनरेशन, नेविगेशन, फ्लड कंट्रोल, फिशिंग में नॉन कंजम्पटिव यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिमिटेड एग्रीकल्चरल यूज भी हम कर सकते हैं, बट इसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस थे। अब एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्वेश्चन बनाया गया, ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म थे जिससे ये सॉल्व हो सकता था। बट जब से पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली इंडिया की गुडविल का मिसयूज किया है, तो एक दिन तो ऐसा आता ही है जब चाहे आप कितनी भी काइंड हो, कितनी भी अच्छी गुडविल हो, आप एक दिन बोलते हो इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। सो ये इनफ इज इनफ का मोमेंट आ चुका है। सो दिस इज दैट। गवर्नमेंट रिवोक्स दीज मैनी वीज़ा पाकिस्तानी नेशनल्स को। NIA ने इतना यहाँ पर एक्शन लिया। दिस इज फ्राइडे एंड यहाँ पर ये नेक्स्ट है PPF अकाउंट। कस्तूरी रंगन साहब का जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत अच्छा है। आपने थीमेटिक मिशंस बनाए, जैसे एजुसेट है फॉर टेली एजुकेशन, इनसेट है फॉर नेविगेशन, GSET मेडिसिन में बनाया, कम्युनिकेशन में बनाया, रिसोर्स सेट में बनाया। फिर आपने मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, कार्टोग्राफी, मेगा अर्थ, ट्रॉपिक अर्थ साइंस की, एस्ट्रोसेट मतलब साइंस, चंद्रयान 1, लूनर मिशन। तो ऐसे थीमेटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन को डिफरेंट थीम्स में आपने अरेंज किया है। जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, टाउन प्लानिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फिशरी, हेल्थ, एजुकेशन, सब जगह हमें एग्जाम्पलरी बेनिफिट्स मिले हैं। सो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली स्पेस एक्सप्लोरेशन और उसके बेनिफिट्स। ये है गैदरिंग स्टॉर्म, पाकिस्तान मस्ट एलिमिनेट द टेरर ग्रुप वर्किंग ऑन इट्स सॉइल। ये आइडियल पाकिस्तान का रेस्पॉन्ड होना चाहिए था। पहले तो टेररिज्म को बैक नहीं करना चाहिए। दूसरा, जैसे ही ये टेरर अटैक हुआ, आइडियल केस में पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए और ये जितने भी टेरर ग्रुप है अपनी जो पाकिस्तानी सॉइल में है उसको डिसमेंटल करना चाहिए। दिस शुड बी द वे, बट नो, पाकिस्तान ने इनफैक्ट इसको डिनाई किया। सो नाउ नेसेसरी एक्शन इज रिक्वायर्ड। देन कैरेट एंड स्टिक है, 2015 अकॉर्ड है ईरान का। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को डीन्यूक्लियराइज रखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को अच्छा खाना सिखाना बहुत ज़रूरी है। ईट वेल मस्ट बिगिन इन स्कूल। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके जो रोल मॉडल्स होते हैं कई बार वो भी नॉट अप टू द मार्क होते हैं, तो इससे बहुत बैड इन्फ्लुएंस भी आ रहा है। तो अभी वर्ल्ड लीडर गैदर हुए थे न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट में, जनरल असेंबली थी, और अब बात आया कि बच्चों को अच्छा और हेल्दी खाने के लिए कैसे हम एनकरेज करें।
कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्लोबल न्यूट्रिशन एफर्ट है कि पहले 1000 दिन बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 साल में उसकी इंपॉर्टेंट ग्रोथ होती है, एडोलसेंट में ग्रोथ स्पर्ट आता है, फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है, अर्ली चाइल्डहुड डेफिसिट अगर होता है तो वो लाइफ लॉन्ग माल न्यूट्रिशन रहता है वहाँ पे। तो वी मस्ट शिफ्ट अवर फोकस, बच्चों को जो उनका ग्रोइंग एज है उसमें अच्छा खाना मिलना ज़रूरी है। ईट वेल, बायोडाइवर्स डाइट होना चाहिए, ये एजेंट ऑफ चेंज हम बना रहे हैं। तो काउंटिंग कैलोरीज ही नहीं, कई बार हम कैलोरीज काउंट करते हैं। एक थिन होने का एक फैड आया था, सो वेट लॉस एट्सेट्रा। सो वी शुड स्टे हेल्दी, ना तो ओवर वेट होना चाहिए ना अंडर वेट होना चाहिए। सो दिस इज़ द वे। अब यहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें, फॉर्डर पॉइंट्स लिखा है। हैबिट्स, पीयर इन्फ्लुएंस, एडवर्टाइजमेंट, जैसे थोड़ा कम, कई बार बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स बहुत खाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। यूएन ने रिसेंटली मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 की बात की थी, जिसमें बात है कि जो फूड है वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में अच्छा होना चाहिए, डाइटरी पैटर्न भी बेटर होना चाहिए। चाइल्डहुड में ओबेसिटी है, क्रोनिक डिसीजेज है, डायबिटीज़ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ये प्रिवेंटेबल डिसीजेज है। इसके अलावा अगर उनमें एनर्जी नहीं होती तो वो लेथार्जिक वर्क करते हैं, ना तो वो गेम्स स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं। सो इससे हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो वेस्ट हो रही है। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट प्रधानमंत्री पोषण अभियान लाती है। हमें लोकल सीजनल फैमिलियर फूड को भी खाना चाहिए, जो हमारे लोकल एरिया है। मिलेट्स हमें एनकरेज करना चाहिए, फ्रूट्स करना चाहिए। सो दिस हैज़ टू बी देयर कि एक बैलेंस्ड हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपनाएं। लर्निंग मटेरियल, स्कूल, कैंटीन, किचन गार्डन, सिंपल कुकिंग सेशंस हो, बच्चों को खाना बनाना भी आना चाहिए। नॉलेज, हैबिट एंड वैल्यू प्रोवाइड करें। फूड लेबल पढ़ें, आप जो भी खा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स देखें कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट कंटेंट वहाँ पर कितना है। सो इट इज़ ऑल अबाउट अ कल्चर। ये कल्चर डेवलप करना ज़रूरी है। फास्ट फूड और जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। सो ये बात है ईट वेल। अ चांस फॉर इंडियाज क्रिएटिव इकोसिस्टम टू मेक वेव्स। यहाँ पे बेसिकली इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और क्रिएटिव जो वर्क है, जैसे इंटरनेट पे हुआ, डिजिटल मीडिया हुआ, या फिर सम अदर क्रिएटिव, पेंटिंग, म्यूजिक एट्सेट्रा, तो क्रिएटिव इकोसिस्टम को हम आगे बढ़ाएं। द मीडोज क्राइज आउट इन फियर एंड ग्रीफ टू हैव एंड टू होल्ड, रूटेड इन टेक। यहाँ पर बात है इंक्लूजन, रीचिंग फॉर इक्विटी, टेक्नोलॉजी से डिजिटली एक्सेसिबल पेडागॉगी होना चाहिए। और ये समग्र शिक्षा प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पे एम्फेसिस दे रही है। यहाँ पे बात है स्क्रूटनी, स्काई रॉकेटिंग, रेंट्स बहुत महंगे हो गए, रेंट हो रहा है बहुत हाई हो गया है। देन RIL है, मारुति, LIC है, ओपिनियन मार्केट है, गवर्नमेंट, पाकिस्तान का एयर स्पेस क्लोज है, श्रीराम। देन क्रीमिया विल स्टे विद रशिया, ये बहुत बहुत लाइक जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। चाइना ने एग्जेम्प्ट किया है सम गुड्स फ्रॉम US टैरिफ। China top leaders vow to boost support for economy. Then Syria, insurance, Trump, Israel, Trump के पहले 100 days। इराक में फार्मर्स एक नई टेक्निक अपना रहे हैं जिससे इस तरीके से इरिगेशन बेटर हो रहा है। सो ये है जैसे नजफ डेजर्ट में ये कर रहे हैं। फर्टाइल प्लेन में टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स 2 रिवर है इराक की, और यहाँ साहिब का वास्ट लैंड भी है नजफ डेजर्ट में। सो बिकॉज वाटर इज लेस, सो दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज मोर एंड मोर वाटर पर ड्रॉप मोर क्रॉप। फ्लाई अलोफ्ट है, ये है आरवे वैली है, दिस इज इन फ्रांस। एंड US वार्सिटीज है, पोप, एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में हम बहुत कमिटेड है। एवरीडे मीन्स एवरीडे वी विल ट्राई टू फॉलो अवर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कल भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। So this is 26th of April 2025. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.